So for condition of coplanar lines, this is one of the possibilities. If the lines are coplanar, which simply means they lie in the same plane. Same plane का मतलब ये तो 10th क्लास की बात हो गई. XY plane हो सकता है, right? So if two lines are in a same plane, either they will intersect or they will be parallel. तो केस वन जो है इंपॉर्टेंट जो मैं अभी ले रहा हूं, इफ दे आर कोप्लानर दे आर इंटरसेक्टिंग, राइट? तो इस केस में हो क्या जाएगा, मान लीजिए पहली लाइन थी r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, लाइन हम ऐसे चूज करते हैं ना, यहाँ b1, एंड r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू टाइम्स b2. If the lines are coplanar, they are intersecting and hence their shortest distance will be zero. Distance between these two lines is zero. और recall that shortest distance का फार्मूला क्या होता था, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 ओवर b1 क्रॉस b2, and this has to be then zero. नीचे जीरो हो नहीं सकता. So of course numerator only has to be zero, which is in fact the desired condition to check whether the given two lines are coplanar or not in the vector form. Parallelly, we can talk about the Cartesian form. Please check out it over here only. This is your first line. This is your second line in Cartesian form. So if they are coplanar, SD will be zero. Though I haven't taken the formula for SD in Cartesian form because that is very complicated to learn. Therefore, easier था यहाँ वाले केस में at least vector form. But shortest distance का न्यूमरेटर जो होता है वो ये होता है कार्टेशियन फार्मूले का. तो बस आप इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के. If this determinant comes out to be zero, then we claim that the given two lines are coplanar. अब अगर दो लाइंस कोप्लानर हो गई, means they are lying in the same plane. What is the equation of the plane containing these two lines? So that is again given by this direct formula. Please make a note of it. Everyone, पहले note करिए, फिर we will discuss. Prove that these two lines are coplanar. Also find the equation of plane containing these two lines, a direct application of this and this. So आप check करिए how you are going to write it. Here what is your points क्या है जिससे पास हो रही है, x1 will be 1, y1 will be 2, z1 will be 3. इन्हें इक्वेट टू 0 कर देते हैं ना, तब आता है. ऐसे ही x2 will be 2, y2 will be 3, z2 will be 4. a1 b1 c1 फर्स्ट लाइन के drs हो गए, a1 b1 c1, a2 b2 c2 सेकेंड लाइन के dr. और फिर आप कंसिडर करेंगे डिटर्मिनेंट. कौन सा डिटर्मिनेंट था, ये रहा. Consider the LHS of that determinant, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, followed by simply writing the drs. When you substitute all these values, so this is 2 minus 1, 3 minus 2, 4 minus 3,
ये तो सिंपल चीज लिख रहा हूं, सिर्फ वैल्यूज को पुट करा एंड सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट, चेक इट आउट, इट मस्ट कम आउट टू बी 0। तभी तो हमारा प्रूव होगा ना कि ये लाइंस कोप्लेनार हो गई हैं। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग देम। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन वुड बी सिंपली x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, और नीचे सिंपली dr's आ जाएंगे, equate to 0, solve it in a usual manner, you will get the desired equation of the plane. I'm sure everyone must have also noticed that these two lines are not parallel. Check it out. DRs of these two lines were not proportional. Therefore, the lines were not parallel. इसीलिए ये method easily formula लगा दिया. But if the lines are parallel, then this formula and method fails. क्यों? आप चेक करिए, अगर लाइन पैरेलल हो गई तो ये तो पहले से ही 0 हो जाएगा, B1 क्रॉस B2। तो B1 और B2 सेम ही तो हो जाएंगे आपके पैरेलल वेक्टर्स, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0, तो दैट विल गिव मी दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0, विच इज एब्सर्ड, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में डिस्टेंस 0 हो ही नहीं सकता। इसीलिए रॉन्ग यूसेज ऑफ फॉर्मूला से ये आया कंक्लूजन। क्या करेंगे इस केस में? चेक आउट दिस क्वेश्चन। तो देखने में तो बिल्कुल लगता है कि ये प्रीवियस टॉपिक जैसा ही है, बट यहां कंसेप्ट लॉजिकली लगाना पड़ेगा। चेक इट आउट। Find the equation of a plane which contains two parallel lines. Contains two parallel lines. आप चेक कर सकते हैं, ये पैरेलल वर्ड नहीं भी लिखते, डी आर सेम या प्रोपोर्शनल आपके पास गिवन है, तो मेथड गोज लाइक दिस। अब यहां आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। एक सिंपल कंसेप्ट है जो आप इजीली समझ पाएंगे। मान लीजिए ये प्लेन है जिसके अंदर ये दोनों लाइंस आ रही हैं, so and they are parallel also, so this is first line, this is second line and they are parallel. Equations भी लिख देता हूं मैं for our understanding. Second one is now. Can anyone tell me a particular point on this line? Particular point, not the general point. इस लाइन के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें पता है। Yes, no one. 3 minus 4 1, राइट। ये अनम्यूट करके बोल दिया करो, लिखने में इतना कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। आप चेक करिए न्यूमरेटर्स की हेल्प से मुझे डायरेक्टली 3 माइनस 4 1 इस लाइन पे पता है, और ऐसे ही इस लाइन का हो गया -1 2 0। यस, तो व्हाट डज दैट मीन? आप इस लाइन को भूल जाओ, सिर्फ फोकस करो पॉइंट ए के ऊपर। दिस पॉइंट मस्ट लाई ऑन द प्लेन ऑल्सो, जिसकी मैं इक्वेशन निकालना चाहता हूं। तो अगर मुझे उस पॉइंट, एक पॉइंट पता हो प्लेन के ऊपर, मैं ए पे सिर्फ अभी फोकस कर रहा हूं, तो लेट required equation of plane is,
a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0, where a b c क्या है, dr of normal to the plane. The most important but basic and fundamental rule, ये फॉर्म 2 ऑफ अ लाइन हमने ऑलरेडी किया हुआ है. जब भी आपको प्लेन के ऊपर एक पॉइंट पता हो, ऑलवेज स्टार्ट विद दिस अप्रोच, ऑलवेज. नाउ बी जो है वो भी तो इसी प्लेन पे लाई करेगा, ये वाला पॉइंट. बी लाइज ऑन प्लेन 1. सेटिस्फाई करवा दो उसकी इक्वेशन को. एक्स की जगह -1, y will be 2 and z will be 0. So which will give me one equation in ABC. एक इक्वेशन और है जो हम एबीसी में निकाल सकते हैं. वो क्या इक्वेशन है? एनीवन? One more equation, easily one can find. चेक करिए, ये रहा इस प्लेन का नॉर्मल. से दिस इज द नॉर्मल टू दिस प्लेन. मैंने इस नॉर्मल के डी आर क्या एज्यूम करे थे? एबीसी. What is so special about this normal and these two parallel lines? Don't you think so? ये भी आपस में perpendicular हो जाएंगी. The normal to the plane will always perpendicular to this line. In Yes, sir. fact, इनफैक्ट प्लेन के अंदर ये तो लाइन मैंने बिल्कुल वर्टिकल ड्रॉ कर दी. मैं कह रहा हूं आप लाइन ऐसे इमेजिन कर लो, ये लाइन जा रही है. और अब अगर आप इस प्लेन का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, देखने में नहीं लग रहा, बट दिस एंगल विल बी ऑलवेज 90 डिग्री. एनी लाइन इन अ प्लेन विल बी ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द प्लेन. तो क्या कंडीशन आ गई मेरे पास? दूसरी कंडीशन, इस लाइन के डी आर थे 3 to 1, 3 to 1, और प्लेन के हैं एबीसी. 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0. रीजन आउट कर देना यहां पर. ये इंपॉर्टेंट है यहां के डायरेक्ट कैसे लिख दिया. उसके बाद सॉल्विंग सेकेंड एंड थर्ड using the usual cross multiplication method, get ABC and replace the values in equation 1. You will get your required answer. Angle between planes. Consider this next subtopic. Very simple article. आप चेक करिए, आपको ये दो प्लेन्स गिवन हैं. R dot N1 is equal to D1 and second one is R dot N2 is equal to D2. So angle between two planes is nothing but the angle between their normals. That is a basic understanding. तो ये फर्स्ट प्लेन का ये नॉर्मल वेक्टर जा रहा है ब्लैक कलर से, तो ये एक्चुअली क्या हो गया? n1 वेक्टर. रेड कलर वाला सेकंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है n2. एंगल बिटवीन द लाइंस और देयर नॉर्मल्स will be the angle between the
प्लेन्स। तो इनके बीच में एंगल हम याद करिए ऐसे निकालते हैं, cos theta is n1 dot n2 upon magnitude of n1 n2। एक्यूट एंगल पे फोकस करेंगे, मॉड लगा दीजिए। इन कार्टेशियन फॉर्म, if the planes are given like this, a1x plus b1y plus c1z plus d1 is 0, and this is the second plane, so of course dr of normal होगा ना, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। I'm sure everyone is clear with this formula also, क्योंकि लाइंस के बीच में जो एंगल का फॉर्मूला है वही तो यहां लगेगा। Followed by two very important deductions. Planes are perpendicular if their normals are perpendicular. Already used this concept in problem solving. And planes are parallel if their corresponding drs of normal are proportional. Again, a fundamental idea. One direct question based on it. Find the angle between these two planes using vector method। बोर्ड में कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि स्पेसिफिक मेथड बताया जाए कि उसी से निकालना है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बट एनीवे, इफ दे आर डिमांडिंग इन वेक्टर फॉर्म, तो आपके पास प्लेन्स की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म क्या हो गई, आर डॉट, पहला वाला प्लेन क्या होगा, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप इज 5, और दूसरे वाला r डॉट 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप इज 7। ऑफ कोर्स ये हो गया n1 और ये हो गया n2। cos theta is n1 dot n2 upon their magnitudes. So 2 into 3 plus 1 into minus 6 plus minus 2 into minus 2 over under the root 4 plus 1 plus 4, वो यहां से आ गया, और दूसरे से 9 plus 36 plus 4। आंसर आपसे एंगल पूछा है तो कई बार हम ये भूल जाते हैं लास्ट में। प्लीज डू रिमेंबर, कॉस इनवर्स की टर्म में आपका आंसर दिखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। ये क्लास पॉसिबिलिटी रह रही थी। वी ऑलरेडी डिड टॉक अबाउट द एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स। तो अब हो जाएगा लाइन एंड प्लेन। तो इस केस में आई एम नॉट गोइंग टू द प्रूफ पार्ट, बट बेसिक आइडिया सिर्फ इतना सा देख लीजिए। ये लाइन जा रही थी ब्लैक कलर से और ये प्लेन है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इनके बीच के एंगल की, तो एंगल बिटवीन देम इज एक्चुअली रेफर टू एज दिस, द एंगल बिटवीन दी नॉर्मल एंड दिस। तो अगर मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो 90 रहा होगा। तो जब मैं इसके प्रूविंग में जाता हूं ना, तो वो एक्चुअल में कॉस में ही होता है, बट एंगल अब की बार आ गया ये, और कॉस 90 माइनस थीटा दे देगा साइन थीटा। साइन थीटा।
और वो हो जाएगा आपका सिंपली किस तरह से, अगर मैं इसमें बात करूं, प्लेन्स के नॉर्मल के डी आर्स ले लो, A1 B1 C1, लाइन के डी आर ले लो। तो फॉर्मूला तो इजीली आप इमेजिन कर पाएंगे, क्योंकि हम रिपीटेडली यही फॉर्मूला लिखते चले हैं। द ओनली थिंग टू रिमेंबर कि यहां चेंज होकर साइन आ जाएगा, दैट्स इट। और अगर यही चीज मैं क्विकली बात करूं वेक्टर फॉर्म में, तो लाइन मान लीजिए आपके पास है R इज A प्लस लैम्डा बी, एंड द प्लेन इज R.N इज इक्वल टू D। तो इन दोनों के बीच में एंगल किन से अफेक्टेड होगा? सिर्फ इससे और इससे। और वो फॉर्मूला साइन की टर्म में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? B.N अपॉन मैग्नीट्यूड B इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ N। चेक आउट दिस डायरेक्ट क्वेश्चन है अब ये। फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड प्लेन। बस मुझे साइन थीटा लगाना था। और मैंने ये जरूर नोट करा था कि एक्स वाई जेड स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, देयर कोफिशिएंट्स आर 1। तो यहां से डी आर ये होंगे, यहां से डी आर ये होंगे। सो 2 into 10 प्लस 3 into 2 प्लस 6 into -11 अपॉन 4 9 36। I don't need to explain, everyone obviously able to understand ये कैसे लिखा होगा। एंगल आ जाएगा साइन इनवर्स की टर्म में। बोर्ड में एक बार क्या करा, सिर्फ यहां इतना सा चेंज कर दिया, फाइंड दी कोसाइन ऑफ एन एंगल। याद करो लाइन और प्लेन में हमने जो फॉर्मूला याद करा है वो साइन की टर्म में ही है। तो आप सॉल्व स्टार्टिंग में तो साइन से ही कर देंगे, और फिर 10th क्लास का मेथड लगा देंगे कि साइन अगर ये है तो कॉस क्या रहा होगा, लाइक दैट। एज पर द रिड्यूस्ड सिलेबस अगर मैं बात करूं, तो दिस सब टॉपिक एंगल बिटवीन द प्लेन्स and angle between the line and plane is deleted. But in competitive exams, of course, this will definitely come, and it is very easy to understand as well. इसीलिए मैंने ये करवा दी और बाद में बताया है deleted है ये। Now, finally, a list of questions for your homework की अगर मैं बात करूं, तो आप चेक कर सकते हैं। दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज, वी ऑलरेडी हैव डन। ये शायद मैं आपको पहले दे भी चुका हूं एक दिन पहले होमवर्क में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ऑल कॉन्सेप्ट्स वट एवर वर रिक्वायर्ड इन योर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ऑलरेडी कवर्ड। तो ये तो कंप्लीट रखिए होमवर्क में। ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली ये रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से वैसे डिलीटेड है, क्योंकि इसमें एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स की बात करी है। बट स्टिल दैट इज रिक्वायर्ड, स्टिल दैट इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूंगा कौन सा, ये अभी भी सिलेबस में है, और ये टॉपिक कह रहे हैं डिलीट कर दिया। और इसके सिलेबस में होने का मतलब, दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं, दो प्लेन्स अगर परपेंडिकुलर हैं, तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। ये कंसेप्ट कहां से डराइव हुआ है? वो यहां से हुआ है। तो इसीलिए फॉर अ नेम सेक
डिलीशन दिखा दिया है, बट अल्टीमेटली करना पड़ेगा ही कंसेप्ट ये, तो इसीलिए मैंने ले लिया है ये। बाकी ये तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी से मिसलेनियस की जब मैं बात करूं, आई ऑलरेडी हैव कवर्ड 80% ऑफ द क्वेश्चंस बाय डिफॉल्ट। जहां जहां रिक्वायर्ड था लाइन में या प्लेन में, वेयर एवर, आई ऑलरेडी हैव चोजन द क्वेश्चंस फ्रॉम द मिसलेनियस। तो एक बार अब आप जब ओपन करेंगे एनसीईआरटी, मिसलेनियस देखेंगे, दैट इज ऑलरेडी डन। हार्डली 3-4 क्वेश्चन होंगे जो नहीं लिए हैं, बट दे आर वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो डू दोज क्वेश्चंस इन योर होमवर्क। एक तो ये पार्ट है। अब इसके बाद जो मैंने बात करी है, ये 3 पेजेस हैं। फाइनली कंपाइल्ड होमवर्क है आपका ये, थ्रू आउट 3D में से मेनली प्लेन की ही मैंने बात करी है वैसे यहां। सो दिस इज योर 4, 5, 6, 7। चलो नंबरिंग कर दूंगा मैं, आप एक बार जरा अपने यहाँ क्वेश्चंस प्लीज पढ़कर देखिए, और अगर किसी को कोई डाउट लगता है स्पेसिफिक क्वेश्चन में, देन आई विल टेक दैट। हाँ, इट इज योर टर्न। अब आप एक बार पहचानिए कहाँ डाउट लग सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। सो डू लेट मी नो। थर्ड क्वेश्चन। सी थर्ड क्वेश्चन के अंदर मैं एक चीज ये आपको बता देता हूं, सेकंड पार्ट डिलीटेड है, क्योंकि वो एंगल की यहां पर बात करी गई है। बट स्टिल बेसिक आइडिया इफ यू वांट आई कैन टेल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। तो आई एम श्योर ये तो याद होगा क्या करना है। फर्स्ट प्लेन, ये वाला सब टॉपिक है। पहली बात तो ये माइंड में आनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओपन द ब्रैकेट, कंबाइन लाइक टर्म्स, ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, इज परपेंडिकुलर टू द अनदर प्लेन। तो क्या हो जाएगा, इनके नॉर्मल्स के डीआरस का डॉट प्रोडक्ट वो वगैरह ये आप सब कर लेंगे इजीली। दिस विल बी 0। तो इससे मुझे लैम्डा की वैल्यू मिलने वाली है, एंड व्हाट इज दैट वैल्यू, 6 लैम्डा, 335 -5। लैम्डा की वैल्यू आप रख देंगे यहां इस इक्वेशन में, तो प्लेन की इक्वेशन वुड बी समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, अगर कहीं कैलकुलेशन में हो मिस्टेक प्लीज डू लेट मी नो, जस्ट टू सेव द टाइम। मैं थोड़ा सा फास्ट यहां मूव कर रहा है, बट मेन है कंसेप्ट के बारे में पता होना। माइनस माइनस प्लस 10z एंड माइनस 15 इज 0। सो 7x प्लस 13y और प्लस 4z एंड देन -9 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। आई थिंक ये सही है, एक बार आप चेक कर लीजिए प्लीज। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ऑल्सो फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ दिस प्लेन, मतलब जो आंसर आया इसका एंगल बताओ एक्स वाई प्लेन के साथ। ये भी एक प्लेन है
और एक्स वाई ऑब्वियसली एक अनदर प्लेन है। तो चेक करिए, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की बात करी है, अभी करा हमने। एंगल बिटवीन द प्लेन्स इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो चेक करिए, इस केस में डी आर ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन टू वो क्या हो गए, 7, 13 एंड 4। और डी आर ऑफ नॉर्मल ऑफ एक्स वाई प्लेन, एनीवन, क्या होंगे? यस, सोचो, बहुत इजी चीज है। यस आर्चव, बिल्कुल सही। 0, 0, 1। चेक करिए, नॉर्मल टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल जेड एक्सिस होता है, दैट इज अ बेसिक विजुअलाइजेशन। और जेड एक्सिस के डीआर होते हैं 0, 0, 1। तो बस अब आपके पास कॉस थीटा का फार्मूला लग जाएगा। आपसे इनके बीच का एंगल ही तो पूछा था, इंक्लिनेशन का मतलब ये चीज। सिंप्लीफाई, यू विल हैव योर रिक्वायर्ड आंसर। यस, ठीक है प्रतीक्षा। एनी अदर क्वेश्चन? अब ये आपके ऊपर है, जो मैंने ये शायद 18 क्वेश्चंस बनते हैं वो देखना पड़ेगा। तो अब आपको अपने आप प्रैक्टिस करना है, एंड आई विल ओनली टेल दोज हु विल शेयर देयर सॉल्यूशन और आस्क अ स्पेसिफिक डाउट। अदरवाइज फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, एलपीपी। वो तो 2 पीरियड का ही मैक्सिमम शायद रहेगा, फॉलोड बाय प्रोबेबिलिटी एंड रिलेशन फंक्शन। चलिए, इसमें अगर आपको डाउट नहीं लग रहा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ये इस पेज पे देखिए। ऑब्वियसली देखने से कुछ चीजें क्लियर होंगी, अनलेस यू ट्राई, यू सॉल्व देम। तो वो आपका होमवर्क का पार्ट रहने वाला है। सो अभी तक इतना होमवर्क मैंने नहीं दिया, बट अब इस समय 18 क्वेश्चंस हैं जो आपको ट्राई आउट करने हैं। यू हैव द टाइम, 2 डेज हैं, सैटरडे संडे, सो दैट मंडे से अगर डाउट है तब पूछिए, और मीन वाइल बीच में भी यू कैन ऑलवेज आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। बट जब आप कोई डाउट पूछते हैं, उससे पहले अपना सॉल्यूशन, आपने क्या सोचा, वो शेयर करना मस्ट है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ गलती हो रही है या क्या करना चाहिए। 8 to 12 में कोई डाउट किसी को लग रहा है, एट अ वेरी फर्स्ट लुक? बाकी तो करोगे तब पता चलेगा। फाइनली,
यस, एनी डाउट? 11th। ओह अच्छा, पिछली शीट से कहा है। चलिए फिर लास्ट बस मैं क्विकली ये 11th क्वेश्चन बता देता हूं। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वो मुझे लग रहा था कि क्योंकि वो अल्फा बीटा गामा देख के लगता है कि पता नहीं क्या है। A plane meets the coordinate axis. A plane meets the coordinate axis in ABC. यहाँ A मान लो, this is B and this is C. Such that centroid of the triangle is alpha beta gamma. जब ये ट्राइंगल बन गया, लॉजिकली सोचिए, ये प्लेन है ये एबीसी। इफ ए इज A00, ये वाई एक्सिस का पॉइंट मैं 0B0 लूंगा, एंड दिस इज 0 0 C। मीन्स लेट द प्लेन बी x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज 1। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। that you can easily work out। और ये गिवन है अल्फा बीटा गामा। कंपेयर करिए, ए आ गया 3 अल्फा, बी इज 3 बीटा, सी इज 3 गामा। ए बी सी की वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए एंड यू हैव योर रिक्वायर्ड आंसर डायरेक्टली। चलिए ठीक है, फिर एंडिंग द क्लास। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक है, लीव द मीटिंग। Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. Okay, thank you. Take care. Yeah.